Good morning, my dear students. Today I am once again here with the last topic of chapter number 3, and the topic is alternation of generation in different life cycles. Okay, students, initially I want to tell you that as we discussed about all five divisions of Kingdom Plenty, and we observed many things there. We observed that in some organisms the haploid gametophytic stage is dominant over the diploid sporophytic stage, or in some cases you studied that both gametophytic as well as the sporophytic, either haploid or diploid, both stages are independent. ठीक है. And in some cases we studied that the gametophytic stage or the haploid stage is short living while the diploid stage is long lasting. ठीक है. So here I am going to tell you that what is alternation of generation. Alternation of generation means there are various organisms, ठीक है, which are exhibiting two different phases in their life cycle. ठीक है, one phase is altered by the another phase during its life cycle, and this alternation of different phases is called as alternation of generation. Means जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो इट शोज डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है. नाउ I am going to tell you about different stages of the life cycle in which they are exhibiting different stages. The first stage is haplontic, the second one is called haplodiplontic, and the third one is called as diplontic. ठीक है. Now I am going to start from the very first one. What is haplontic stage? Now in the haplontic life cycle, the dominant photosynthetic phase in such plant is free living haploid gametophytic. यानी आई मीन टू से दैट, यानी कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लाइफ साइकिल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट फेज है जिसमें प्लांट ज़्यादा समय तक एग्जिस्ट करता है, और फ्री लिविंग जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक स्टेज. ठीक है. एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक. सो इफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो यू हैव टू राइट डाउन दैट there are most of the organisms in which the dominant photosynthetic phase in case of plants is free living haploid gametophytic stage. ठीक है. एंड आपको ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी? इफ़ यू विल ऑब्जर्व algaes, in case of the algaes you will find out such kind of life cycle, haplontic life cycle. ठीक है. in haplontic life cycle, ठीक है, like many algaes, wallbox है, spirogyra है, they are showing the dominant photosynthetic phase which is haploid gametophytic phase. Means sporophytic phase आएगी but it will come for very short duration of time. Now I want to explain this with the help of a flow chart. Here you can see that now you are observing the haploid phase or gametophytic phase. Now what happens here? Actually the spores are produced and the spores are going to germinate, and the spores are haploid in nature. ठीक है. And they are, while the spores are going to germinate, they are producing the main plant body which is photosynthetic. This is called gametophytic plant body, and the ploidy will be n. means जब ये plant body है तो इसमें number of chromosome haploid रहेगा. Now after that the gametogenesis will take place. Gametogenesis means production of gametes. अब देखिए पहले से ही हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो इसमें जो गेमेटोजेनेसिस होगा दिस विल अकर ड्यू टू द, इसमें मियोसिस नहीं होगा. इंस्टीड ऑफ मियोसिस माइटोसिस विल टेक प्लेस एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल रिमेन ऑल्सो एन. ठीक है. गैमेट्स आप यू आर ऑब्जर्विंग, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम एन है. नाउ देर आर टू गैमेट्स, वन इज मेल गैमेट एंड वन इज फीमेल गैमेट. अब मेल गैमेट की प्लॉइडी भी एन है, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी भी एन है. एन प्लस एन 2n हो जाएगा. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा इट्स प्लॉइडी विल बी 2n, एंड दिस इज वेरी शॉर्ट लिविंग स्टेज. तो यू आर ऑब्जर्विंग डिप्लॉइड स्टेज केवल जाइगोट है. जाइगोट वंस अगेन अंडरगोइंग द स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. जाइगोट फिर से मियोसिस करता है और मियोसिस के बाद स्पोर बनाता है, एंड स्पोर्स आर वंस अगेन गोइंग टू जर्मिनेट एंड दे आर फॉर्मिंग गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी विच इज ऑल्सो एन. तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि गेमेटोफाइटिक फेज इसमें डोमिनेंट है. सो सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. द अनदर वन इज लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. नाउ ये आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में. वाई इट इज़ रिफर्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक? बिकॉज इंटरेस्टिंगली इट एग्जिबिट्स इंटरमीडिएट कंडीशन. नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट कंडीशन? बिकॉज हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बोथ आर मल्टी सेलुलर एंड बोथ आर फ्री लिविंग. ठीक है. दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं और दोनों के दोनों फ्री लिविंग है. हाउ एवर दे डिफर इन द डिफरेंट फेजेस. अब लेकिन डिफरेंस ये कि ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था कि इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स आपने देखा था कि जो हैप्लॉइड स्टेज है वो ज़्यादा मोर डोमिनेंट रहती है, और जो इसमें आपकी स्पोरोफाइटिक फेज आती है वो अटैच रहती है फीमेल बॉडी के साथ ही.
ठीक है, बट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वहाँ भी बनता है, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आपका टेरिडोफाइट्स में भी बनता है। अब टेरिडोफाइट्स में देखा था मेन जो प्लांट बॉडी है वो आपकी डिप्लॉयड होती है, बट जो प्रोथेलस बनता है आफ्टर मियोसिस, आफ्टर स्पोर जर्मिनेशन, प्रोथेलस जो है वो आपका हैप्लॉइड है, और वो भी फ्री लिविंग है, और वो भी फोटोसिंथेटिक है। इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स आपने देखा कि ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फेस कर रहा है, क्योंकि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इन विच द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट इज एग्जिबिटिंग इंटरमीडिएट फेज, यानी इसमें दोनों फेज जो आ रही हैं वो इसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, और दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो आपने देखा था कि जो आपका स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ रही थी वो अटैच थी गैमेटोफाइटिक के साथ, वो फ्री लिविंग तो नहीं थी बट वो फोटोसिंथेटिक था, और वो आपका क्या था, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था, एंड डोमिनेंट फेज थी जो गेमेटोफाइटिक फेज थी। बट इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट्स यू स्टडीड दैट द मेन डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज diploid stage or sporophytic stage, but while they are producing spores, spore are going to germinate and they are forming a heart shaped structure which is called prothallus. It is also photosynthetic and free living, but it is existing for a short duration of time, so that's why it is also the example of the haplodiplontic. But what is the main difference? In case of the bryophyte, the main dominant stage is uh, gametophytic stage, but in case of the pteridophytes it is sporophytic phase. Now you can see it in the figure. Here in this figure you can observe that sporophytic main plant body it is 2n, ठीक है, and it is going to spore formation which is called as sporogenesis. Sporogenesis occurs with the help of the meiosis, and after meiosis the haploid spores are going to be produced, यानी the एक spore की जो ploidy होगी वो n होगी. Now spore are going to germinate and they are forming gametophyte, एंड गैमेटोफाइट जब स्पोर ही एन है तो उनसे जो गैमेटोफाइट बनेगा डेफिनेटली वो भी आपका क्या होगा, एन प्लॉइडी होगी. अब गैमेटोफाइट जब बनेगा तो वो गैमेट बनाएगा, तो गैमेट की प्लॉइडी भी एन होगी, मेल गैमेट की प्लॉइडी एन, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी एन. वंस अगेन फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग, एन प्लस एन 2n फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट विल हैव 2n फेज. तो यू आर ऑब्जर्विंग हेयर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यू आर ऑब्जर्विंग हेयर. तो हैप्लॉइड स्टेज कहाँ से शुरू हो रही है, स्पोरोजेनेसिस से आपकी हैप्लॉइड स्टेज शुरू हो रही है, और फर्टिलाइजेशन से पहले तक आपकी हैप्लॉइड स्टेज रहेगी, यानी गैमेट फॉर्मेशन तक. जहाँ गैमेट एक बार फ्यूज़ हो गए तो वहाँ से डिप्लॉइड फ्यूज स्टेज आपकी स्टार्ट हो जानी है. आप देखेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट करेगा और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बट नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो जो मेरे को मेन जो मोटो था मेरे को आपको समझाना था कि हैप्लॉन्टिक क्या है और डिप्लॉन्टिक क्या है. नाउ आई एम फोकसिंग इनटू द मेन टॉपिक. नाउ हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है देखिए, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी 2n. नाउ स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है, यानी स्पोरेंजिया विल हैव स्पोर मदर सेल, एंड स्पोर मदर सेल विल डिवाइड, मियोसिस से डिवीजन होगा, आपके स्पोर बनेंगे, एंड आफ्टर स्पोर फॉर्मेशन जो स्पोर बनेंगे वो आपका स्पोर जर्मिनेट होंगे, एंड आफ्टर जर्मिनेशन दे विल प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. एंड गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, एंड गैमेट बनाएगा. गैमेट बनाने के बाद सिनगेमी होगी, सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, और जो आपकी हैप्लॉइड फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. तो अब आपकी स्टेज शुरू होनी है डिप्लॉयड स्टेज. डिप्लॉयड स्टेज में क्या होगा, आपका जाइगोट जो बन रहा है, जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर, एंड जाइगोट इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड इट विल डेवलपिंग इनटू द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. नाउ मैंने आपको दोनों पहले इसलिए समझाया क्योंकि मैंने डिप्लॉन्टिक समझाया नहीं था, बट आई एक्सप्लेन बिकॉज हेयर यू कैन ऑब्जर्व देयर. देखो हाफ ऑफ इसको किया हुआ है, यानी इसकी लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं हैप्लॉइड फेज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि डिप्लॉयड फेज इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू विल सी हेयर इन डिप्लॉयड फेज द major portion is covered by the diploid phase, and in case of the haploid phase you are observing the major portion is covered by haploid phase. ठीक है, so I think you are capable enough to understand it. Now the diplontic phase में क्या होता है, diplontic phase में diploid sporophytic body is more dominant, and it is photosynthetic, it is independent, and it has the main plant like body is sporophytic in nature, means it is diploid in nature. ठीक है, and sporophytic phase is dominant, and gametophytic is also coming, but it is very short living, and the examples are gymnosperm and angiosperm. I think I already explained the diplontic life cycle. If you want to explanation once again, I can explain once again. You are observing here how the diploid life cycle takes place. ठीक है, okay, I think the concept is quite clear. If you will feel still any difficulty you can directly ask to me. ठीक है, till then thank you and bye bye.